चलिए guys, before starting the profit and loss question, I would like to tell you that the profit is always calculated on the cost price, and cost price will include all kind of expenditure made to bring the product, even the repair or the transportation charge or anything else like that. So the first question talks about like that कि a man bought an old typewriter for 1200 rupees and spent 200 rupees on its repair. So my cost price will become 1400 and now it is sold in 1680. So what is the basic formula? The profit is always, percentage profit is always given by profit upon the cost price. So what is the profit I am making? The profit is of 280 and that I am making on a basis of 1400. So 0 to 0 cancel. If I cancel it out, this is something equivalent to 1 by 5 and that is equal to 20%. Very easy question to go with. To start with your practice, this is a easy. Gradually we are increasing the level with the sheet. The profit and loss 1, 2 and 3. There are number of sheets 4, 5 and it will gradually increase your level. So initially the questions are very easy. Profit and loss, the first answer is 20%. Now moving to the next question. If the cost price is 95% of the selling price, matlab you are selling a product in 100 and the cost price is 95. So if I look at the reverse approach of it, that I am making a profit of 5, but the 5 should be calculated on what? 95. So this is going to be my profit percent. तो 95 पे 5 rupees मैं कमा रहा हूं, इसलिए 5 by 95 profit upon cost price, and this answer has to be more than 5%. So answer is going to be 5.26. ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर 5 by 100 होता तो ये 5% होता, लेकिन डिनोमिनेटर जब मैं कम करता हूं तो मेरी परसेंटेज की वैल्यू बढ़ जाती, मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती. ध्यान रखिएगा इस बात को. जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होती है, फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है. इसीलिए 5 by 100 मेरा 5 के बराबर होता है, मुझे पता है. तो 5 by 95 5 से बड़ा होगा और एक ही ऑप्शन है, इसलिए 5.265. अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 100. दैट इज अप टू यू. But there is only one option, so I can mark it very easily. If there are multiple options with that, it will take some time. Third question, by selling 33 meter of cloth, a person gains cost of 11 meter. Find his gain percent. Now what is actually happening? By selling 33 meter of cloth, a person gains cost of 11 meter. So what do you mean by that? So you are gaining a cost price of 11 when you are putting in the cost price of 33 meter. समझिएगा इस बात को ध्यान से. 33 मीटर बेचने के लिए 33 मीटर जो है, इट इंक्लूड्स 33 मीटर की कॉस्ट प्राइस प्लस अ प्रॉफिट ऑफ 11 मीटर की कॉस्ट प्राइस. द सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर ऑफ क्लॉथ इंक्लूड्स 33 मीटर की कॉस्ट प्राइस एंड 11 मीटर की कॉस्ट प्राइस. दिस इज योर प्रॉफिट. तो व्हाट इज माय फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस. तो माय प्रॉफिट इज ऑफ 11 की कॉस्ट प्राइस एंड माय कॉस्ट वाज 33 की कॉस्ट प्राइस. So if I cancel it out, I get 1 by 3 and 1 by 3 is equivalent to 33.33. ध्यान रखिएगा, नीचे और ऊपर कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए या सेलिंग प्राइस में वैल्यू होना चाहिए, तो ही आपका आंसर सही आएगा. अदरवाइज यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. चलिए. A man gains 20% by selling an article for a certain price. If he sells the double the price, then profit percentage would be. कॉस्ट प्राइस 100 मान लेता हूं, मैं इसको अभी कितने में बेच रहा हूं? 120 में बेच रहा हूं. मेरी पहली सेलिंग प्राइस कितनी है? 120 है. अब वो ये बोल रहा है कि मैं इसको डबल में बेच रहा हूं, तो 120 की चीज कितने में बेच रहा हूं? डबल में. तो मेरी नई सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 240. अभी भी कॉस्ट प्राइस तो सेम है मेरी, ऐसा कोई चेंज के बारे में बताया नहीं उन्होंने. तो 100 की चीज 240 में बेच रहा हूं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 140 का. बेस क्या कहलाएगा? 100 ही कहलाएगा. बेस क्या कहलाएगा आपका? 100 ही कहलाएगा. तो 140 अपॉन 100 जब आप बात करते हैं 140 अपॉन 100 इंटू 100 फॉर्मूले के हिसाब से, तो ये कैंसिल हो गया. तो माय आंसर इज 140%. इज दैट थिंग क्लियर? चलिए आगे चलते हैं इससे. A trader sold a cycle at a loss of 10% and the selling price had been increased by 200. There would have been a gain of 6%. ध्यान से समझिएगा. 100 रुपए की मेरी मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं पहले साइकिल की. आई एम कंसिडरिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल इज 100 एंड आई एम सेलिंग इट अ लॉस ऑफ 10%. मतलब आई एम सेलिंग इट इन द फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी कर दी है मैंने? 90. बट व्हेन आई इंक्रीज इट बाय 200, तो मैं 200 को भी भूल जाता हूं. I am just leaving this absolute value. I will be selling it in a gain of
6%। तो ये कॉस्ट प्राइस सेम है, इसलिए नई सेलिंग प्राइस क्या हुई 106। अब वो बोल रहा है यहां से यहां आने के लिए मैंने 200 रुपए बढ़ाए, तो इन दोनों का जो गैप है वो कितने के बराबर है 16। वो 16 कितने के बराबर है 200 के। नाउ दे आर आस्किंग द कॉस्ट प्राइस, तो दे आर आस्किंग मी व्हाट 100। So now my equation will become something like very easy, that is 100 16 200 अपॉन यहाँ पे x, क्योंकि मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? केवल 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको 4 से कैंसिल करेंगे 25 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4। इसको 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 50, और 50 इंटू 25 विल बी 1250। 50 into 25 will be 1250, and that is going to be the correct cost price of my cycle. Next question, 10 articles were bought at rupees 8 and sold 8 for rupees 10. अब आप समझिएगा, इसको बनाने के लिए आपको बहुत सिंपल लाइन में समझना है। योर कॉस्ट प्राइस वाला जो केस है, इसमें आपकी प्राइस कितनी है 8 रुपए, और क्वांटिटी कितनी है 10 रुपए। और सेलिंग प्राइस वाले में आपकी प्राइस है 10 रुपए और क्वांटिटी कितनी दे रहे हो आप 8। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके मेरे को लगते हैं, या तो आप ईच आइटम की कॉस्ट निकाल लें। क्या निकाल लें आप? ईच आइटम की कॉस्ट निकालें, कॉस्ट प्राइस भी निकाल लें ईच आइटम की, सेलिंग प्राइस भी निकाल लें ईच आइटम की, और फिर सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मेनी ऑफ द केसेस द आंसर इज वेरी इन पॉइंट्स, so it becomes very difficult for you to solve that percentage calculation. So the another way to solve this question is try to make this value equal. Try to make this value equal, and that is the best way to solve this question. आप कभी भी पॉइंट में नहीं उलझेंगे। प्रॉफिट एक आइटम पे निकाले या 50 आइटम पे निकाले, परसेंटेज प्रॉफिट सेम होता है। इफ यू फाइंड प्रॉफिट ऑन 1 आइटम और 50 आइटम, द परसेंटेज प्रॉफिट विल बी ऑलवेज सेम। तो 10 और 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है 40, और 40 बनाने के लिए ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई। So 8 4 जा, मेरी प्राइस हो गई 32, इन विच आई एम गेटिंग 40 आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस में, एंड 50 में बेच रहा हूं मैं कितने प्राइस को, कितनी क्वांटिटी को 40। तो वॉट एवर आई बॉट आई हैव सोल्ड ऑल्सो, वॉट एवर आई हैव बॉट आई हैव सोल्ड ऑल्सो, बट दिस इज माई कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज माई सेलिंग प्राइस। सो आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 18 ऑन द बेसिस ऑफ 32. If I cancel it out, it will become 9 by 16. And 9 by 16 is nothing but, if you calculate it by 100, I know it is going to be somewhere around 50 plus, but all the options are 50 plus. So if I remove 8 by 16 from this, and I have 1 by 16, so 8 by 16 is 50 and 1 by 16 is 6.25. This is called breaking up the fraction into two parts. तो 8 by 16 1 by 2 होता है, which is equivalent to 50%, और 1 by 16 होता है 6.25. So answer will be 56.25. Make a note, answer will be 56.25.